Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Today we discuss about class 11th, chapter number 2, relations and functions. Now this chapter also we discuss in class 12. So it is very important chapter for you. Now before it we already discussed about the functions and also the Cartesian product of two sets. Okay. Now today we discuss about the relations. First thing, you know about the already relations between your father and mother, daughter, son or father. There are many relations you already see in your life, in practical life. So today we relation between two sets. First, suppose there are two sets are given, A and B. Suppose set A is given 1, 2, 3. And second set B is given, suppose 4, 5, 6. And suppose we say relation A to B may be 1, 2, 3 and 4, 5, 6. 1 to 4, 2, 5 and 3 to 6. Means number 1 related to 4, 2 related to 5 and 3 related to 6. We already see in your Cartesian product A into B. So there are many relations we define for the two sets. But here exactly definition of relation. You see, take the one example. Relation defined from set A to B. One R A to B where relation R is given x comma y where y is equal to x plus 1. And already given A set equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is given 2, 3, 4, 5, 6. That means this time R 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set A and set B is given 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Means we take the value for x from set A. Suppose first we take 1. So put the value in this equation. X is 1, so 1 plus 1 is equal to 2. पहले आपको ये देखना है क्या 2 यहाँ पे सेट B में लाई करता है या नहीं. अगर नहीं करता है तो 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा. यहाँ हम देखते हैं 2 is also is given. That means 1 is related to 2. So also you write in form of R is equal to 1 comma 2. Now take the second value 2. So 2 plus 1 is equal to 3. 3 is also given. That means 2 is related to 3. So 2 comma 3. Next we take the 3. 3 plus 1 is equal to 4. And 4 is also given. That means 3 is related to 4. So 3 comma 4. Next we take the value y is equal to 4 because 4 is also given in set A. 4 plus 1 is equal to 5. That means 4 is related to 5. Next 5. Now 5 plus 1 is equal to 6. That means 5 is related to 6.
and last value, take the 6. Y is equal to 6 plus 1 is equal to 7. पहले हमने 5 लिया, 5 plus 1 6, 6 यहाँ पे लाई करता है. That means 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. That means 4 is related to 5 and 5 is related to 6. But 6 plus 1 is 7 and 7 is not lie in set B. इसका मीनिंग ये हुआ 6 is not related to any one element. 6 किसी से भी related नहीं है, तो आपका सेट बन जाता है यहीं पर complete. So relation is equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5, 6. This is the completely one element, and here given that is the Butler form, y equal to x plus 1. तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस की. अब हम बात करते हैं, सपोज सेट A to A. अब यहाँ A to A, suppose A is the any real number. That means any real number 2 must be related to some element. So here A is not given that what is the relation. यहाँ relation नहीं given है, but कोई भी relation real number किसी real number से related हो सकता है according to definition. अब यहाँ हम बात करते हैं next domain and range. Domain, range and codomain. तो यहाँ मैं बात करूँगा डोमेन की. इसी एग्जांपल में मैं आपको डोमेन की डेफिनेशंस लूँगा. फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4 and 5. It is the domain. So domain for this one 1, 2, 3, 4, 5 means first set of first element in relation is called डोमेन. अगर यहाँ 6 रिलेटेड नहीं है तो हमने 6 को नहीं लिया. इट इज द डोमेन. अब हम बात करते हैं रेंज. व्हाट इज द रेंज? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज. सो सेकंड एलिमेंट मीन्स 2, 3, 4, 2, 3, 4 and 5 and 6. This set is called the range. Now codomain. Codomain हम पहले भी बात कर चुके हैं. Codomain is equal to complete set B. You take the second set is always called the codomain. Set of second set is always called codomain. Set of second element is called the range. Set of first element is called the डोमेन. यहाँ मैंने बात कर दी एक तो डेफिनेशन ऑफ रेंज की, फिर हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन. फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B. कोई भी आप सेट ले लीजिए, चाहे वो रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो. अगर हम ये बात करें कि हम कितने रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, how many relation from one set to another set. इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. नंबर ऑफ रिलेशंस. नंबर ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2 raised to the power n, where n is the number of element in set A. फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको पावर लगाना है. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power n. नाउ इन ए, फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ. सेट ए में यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 elements. So 2 raised to the power 6. So what is the 2 raised to the power 6? ये आपको कैलकुलेट करना है.
2 raised to the power 6 means 2 into 2 into 2. ये नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे कि हम यहाँ पर सेट ए से बी में कितने रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एवरी सेट इज द मस्ट बी रिलेटेड टू, यहाँ जैसे अपन ने सेट को डिफाइन किया रिलेटेड टू इटसेल्फ, और 5 को भी अपन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 6, दैट मीन मैं 2 रेज़ टू द पावर 6 के बेसिस पर मैं यहाँ पे रिलेटेड कर सकता हूँ, मीन्स 64। ऐसे 64 रिलेशंस हैं जो मैं सेट ए से बी या सेट ए टू ए में मैं डिफाइन कर सकता हूँ। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, and 16 into 2 32, and 32 into 2 64. That means 64 relations are defined from one set to another set. So learn this formula for the number of relations. तो ये आपको क्लियर हो गया, definition of relations, domain of relations, and range of relations, and codomain of relations. Okay? Now next हम बात करते हैं इसी के साथ में मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस इसमें गिवन है, जिसमें आपको सिंपल एग्जांपल्स, कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपको गिवन है। मैं क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन वेयर एन इज द नेचुरल नंबर। आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है ऑफ ए नेचुरल नंबर बाय आर। दैट मीन्स आर इज ऑलरेडी गिवन, सो व्हाट इज द आर? मैं आर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में देखकर ही लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। R is equal to x, y. So what is x, y? क्योंकि R जो है वो दो एलिमेंट मीन्स पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। where y is equal to, जैसे अपन ने पहले लिखा था, y is equal to x plus 5, where x is the natural number less than 4. यहाँ पे कंडीशन गिवन है, x is, condition is that less than 4. It is the condition x is the natural number less than 4 and x comma y comma belongs to n, and x and y belongs to n. यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर ये कंप्लीट सेट है. Now the relationship using the roster form and write down the domain and range. आपको डोमेन और रेंज दोनों यहाँ पर लिखने हैं. तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसको पहले अपन रोस्टेड फॉर्म में इसको लिखते हैं. नेचुरल नंबर अगर बात करते हैं अपन, तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर? आप चाहें तो पहले नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से ये इन्फिनिट नेचुरल नंबर है. रिलेशंस आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और यहाँ पर x की एक कंडीशन है कि वो लेस देन 4 है. मीन्स आपको ओनली लेस देन 4 ही लेना है. तो आप चाहें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर हमें लेस देन 4 है, तो आप चाहें तो लेस देन 4 तक आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3. चलिए स्टार्ट करते हैं. First you take the 1. 1 plus 5 is the 6. 1 is related to 6. क्या देखा आपने? You take the x is 1. That means 1 is related to 2. अब 1 किससे related है? 6. एक चीज याद रखिएगा, अगर वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहा है x और y, तो y जो भी आ रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो उससे रिलेटेड नहीं होगा. देखो 6 is the also natural number.
Now take the second 2. 2 plus 5. Now 2 plus 5 is 7 and 7 is also natural number. 3. 3 plus 5 is the 8. 8 is also natural number. अब आगे मैं 4 क्यों नहीं ले रहा हूँ? Because it is the condition x is less than 4. आपको less than 4 ही लेना है. Less than 4 natural number are only 1, 2, 3. So it is the answer. ये तो बात हो गई, हमने रोस्टेड फॉर्म में. अब आपको डोमेन फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Set of first elements. Now also find the range. आपको range find out करना है. What is the range? Range is 6, 7 and 8. Set of second element is a range of this for this relation 6, 7 and 8. हम बात कर रहे हैं 6, 7 and 8. तो ये बात हो गई. रिलेशंस को भी डिफाइन कर लिया अपन ने, डोमेन हमने फाइंड आउट कर लिया और रेंज भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया. इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा है. ओके स्टूडेंट, तो ये बात हो गई एक्सरसाइज 2.2 के लिए. 2.2 कंप्लीट होता है. आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे. क्वेश्चंस आपको खुद को करना है. डाउट्स और कंफ्यूजन जो हैं वो आप, मोबाइल नंबर आपको मालूम है, आप मैम को पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. जो भी आपको डाउट्स हो किसी भी सम के अंदर, आप उसका एक्सरसाइज का नंबर और क्वेश्चन का नंबर आप लिख दीजिए, मैं आपको बोर्ड पे करवा दूंगा नेक्स्ट डे. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन, द रोल ऑफ फंक्शन इन मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फंक्शन? हमें ये देखना है कि ये फंक्शन है क्या. रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन से ही बनता है फंक्शन. रिलेशंस में अभी आपने देखा कि कुछ एलिमेंट्स रिलेटेड हैं और कुछ एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है. लेकिन जब फंक्शन की हम बात करते हैं तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं फॉर फंक्शन. सपोज f फ्रॉम a to b. Suppose set A is given 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. It is the A. And B is given. Suppose B is given 2, 3, 4, 5 and 6. In set A, there are 4 elements are given. In set B, there are 5 elements are given. First, what is the definition of function? ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ. Every element of set A is must be related to some element of set B. सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए. इसका मीनिंग ये हुआ कि जब अपन डोमेन की बात करेंगे तो फंक्शन के लिए डोमेन हमेशा सेट ए ही होगा. सेट ए इसलिए होगा क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है. रिलेशंस के लिए ये कंडीशन नहीं थी, कोई एलिमेंट खाली भी रह सकता था. लेकिन फंक्शन की क्या कंडीशन है? एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट. There are two conditions for function. अब सेकंड कंडीशन को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. One element of set A related to unique element of set B. Unique means use the word unique. Unique means only one and only one. Only one and only one. इसके लिए हमने एक सिंपल एक वर्ड यूज किया है, यूनिक. इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आप देखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक. लिख नहीं रहा हूं मैं, लिखने में टाइम लगेगा. वैसे डेफिनेशन आप बुक में भी देख सकते हैं. एक बार फिर से मैं दोनों कंडीशंस को
रिपीट कर रहा हूँ, वन एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड होंगे, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। तो डोमेन जो है वो सेट ए ही होगा। अगर डोमेन ए है और साथ में ये भी है कि वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो वो सेट, वो ऐसे रिलेशंस जो हैं वो रिलेशंस नहीं, वो एक फंक्शंस बन जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ग्राफिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5। और यहां पर मैं एक और लिख रहा हूं 1 2 3 4 and 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिएगा 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 5। चलिए एक बार और बात करते हैं अपन A and B। यहां मैं R ले रहा हूं 1 2 3 4, 2 3 4 5 6। एलिमेंट्स मैंने वही रखे हैं 1 2 4 3 6। देखो ध्यान से देखिएगा, इन सेकेंड रिलेशन 1 2 रिलेटेड टू 2, 2 to 3 and 3 to 5, लेकिन 4 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 किसी से भी रिलेशन नहीं रखता है। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। थर्ड में ध्यान से देखिएगा 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5, 4 to 6। इसका हर एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड तो है, लेकिन 2 जो है वो 3 से भी है और 4 से भी है। मीन्स 2 दो एलिमेंट से रिलेशन रखता है। दैट मीन्स ये भी रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करते हैं अपन कि इसका हर एलिमेंट रिलेटेड भी है और वन एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसको अपन बोलेंगे इट इज अ फंक्शन। So first relation is called the function, but second and third are not a function. तो क्या डेफिनेशन हुई फंक्शन की? Every element of related to some element of set B, first condition, and second condition, one element of set A related to unique element of set B. अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती है किसी रिलेशंस के लिए तो हम क्या कहेंगे? सच रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन। देखा जाए तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन रिलेशंस की एक कंडीशंस बन गई और ऐसी कंडीशंस के बेसिस पर हम उनको फंक्शंस भी कहेंगे। तो फंक्शन के लिए डोमेन जो है वो सेट ए ही होगा और डोमेन के लिए डोमेन का हर एलिमेंट जो भी है सेट बी से किसी न केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन रखेगा। ये बात होगी रिलेशंस की और ये बात होगी फंक्शंस की। फंक्शंस के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं इस क्लास को यहीं ऑफ कर रहा हूँ। पहले आप रिलेशंस और फंक्शंस को डिस्कस करो और रिलेशंस की जो एक्सरसाइज है पहले उसको आप कंप्लीट करें, उसके बाद में अपन फंक्शन की जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड नाउ गुड डे।